तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल. Good morning, everyone. Today we have with us Shwetank Verma, and he is recommended in his 13th attempt for Indian Coast Guard. He has done his BSc Chemistry. Now he is also doing LLB. We will ask about that as well from Delhi University. So, how has been your life, Shwetank? I can see some struggle and some pitfalls, and you kept yourself motivated. What had been your journey? What had been your motivation to keep it going for 13 long attempts? Ma'am, actually, the journey started from the after class 12 itself, from my TES attempts and post that I was not able to make it in my 4 attempts. Then during my graduation, I was part of NCC, and that was a very that played a very crucial role in kept keeping my motivation and josh high towards armed forces itself. Then I kept on trying again and again for the SSB, but I was lacking somewhere or other, and but I was like, I have to do it. I have to go in this field only. But I also had my backups along with that. So with sir, I was first. My first interaction with sir was in 2021, October 2021. So now it's been almost 10 years with No Frills Academy, and luckily or fortunately, I've been recommended for the first time. Past month only in October 14th from Coast Guard CGSB Noida in my 13th attempt. Mhm. Okay. So, what changes did you make in yourself? What, including your routine and all, and as you said, backup, and how important is having that backup to keep that confidence going? Ma'am, actually, it was a very long. I took a very long time to make some changes in me because, as I said, my first interaction with sir with in October 2021. At first, it was very difficult for me to make amends, but with time, I was able to like. I was not at all disciplined before interaction with sir. Like sir had pointed out some major issues like complacency and getting too comfortable in my zone. So first, I was physically unfit at that time. I reduced my weight over the period of 6 months or so. I lost 8 kgs, and we was very regular with the exercise and even studies. My sir also told me to focus on CDS examination. Like my first three CDS examinations were not clear, but then subsequently I cleared the next three CDS examinations because I was only going for the AFCAT and the direct entries. So that has also boosted my confidence. Plus, ma'am, you asked about backup. Backup is very important. Like after my BSc, I was sure that I do not have to continue this because this was not leading me anywhere. So LLB I took as a backup option because it has very wider scope in first of all, it's a professional degree and it has a very wider scope in the outside world. I can practice law, I can go for the judicial services or even in the corporate law. Once a person has a backup option, there's a sense of security in himself. So there is no problem. You can try for your first aim and always have a backup option. That is a smarter option, I feel, to have a backup option. So, coming to your Coast Guard attempt, tell us Yes, ma'am. how this attempt was different. The screening is Ma'am, entirely actually, different, and then we have to report screening to in Noida. the Coast Tell Guard us was about. like, okay, ma'am. Ma'am, screening in the Coast Guard was 6 months back. It was in six, sorry, six, me. I think 4 months back in June, I think, because there are separate PSB and FSB attempts. So they called us for screening in the earlier stages, and then they allot us date for the FSB. So the screening in was very similar to the normal SSB. They give us just the OIR is different. It is an online OIR which is showed us onto a screen. And it is time based. So first you clear the. I was able to clear the. Actually, all of us was able to clear the OIR part. Then we were taken to a room for the PPDT. It was a very. I hardly remember picture because it has been months. So it was a normal picture, and we had a discussion about it. I think 10 or 12 people were screened in out of 30 or 30 odd people which came. Then I was allotted the date of July, but I shifted my date to October because I had another SSB coming up. So my
FSB, that is Final Selection Board, was from 9th October to 14th October at Noida. Then next, we would like to know your reporting, your psychology, and GTO, if at all, what was Okay, there ma'am. in the Coast Guard. Okay, ma'am. Ma'am, total 40 candidates reported. One was documented out. So finally, it was 39 candidates. First day was documentation only. Second day, the psych test was conducted. I was able to complete all the stories on time, and this time I did a less SRT as compared to with my previous attempts. I was able to do around 46 SRTs in my, but I give time. I was like not hurrying. Earlier, I used to hurry in psychology, just that I have to complete it as many as possible like that. But this time, I gave a little time to myself and thought, give a second of thought to before writing the answer. So I was able to do 46 SRT. SD was completed on time. WAT, I did not leave any WAT. All 60s were done. And in GTO, GTO was group planning exercise, GD, lecturate, individual obstacle, and GOR. So progressive group task, half group task, final group task, and command tasks are not there in Coast Guard because they are yet to install the structures, which they may install by the next batches. So, ma'am, GD was actually, I would say, a bit favoring for me because it was related to my LLB only. That helped me because the topic was related to the induction of judges and all that, the piling of cases on judges. So, what could be a better solution to that? So, I was able to give few valid points towards that. And another topic was related to the economical aspect of India. That in the past few years, the Indian economy has boomed. So, what has been the contributing factor towards its agricultural or IT sector or manufacturing sector recent past years? So, I took up the lead on the IT sector part and spoke my points towards it. And for the GP, there was a blunder that I committed. Actually, while narrating the instructions, there was a thing that GTO sir has mentioned 1 centimeter is equal to 1 unit. But as I was seeing the SAND model, there was a square. There was a scale in which squares size of square, I think 3 by 3 centimeter squares were there, and they were depicting the scale. So what blunder I did make is I went on to write my solution as per the 1 centimeter is equal to 1 unit scale. So when the discussion started, me and apart from me and another candidate, everyone was calculating the distance according to the scale, but I calculated distance according to the instructions of the GTO. So, but what I did, that I understood that the group was going somewhere else. So I managed with the group. I said, okay, that is the distance we are going to take because the number of candidates I have agreed on the square scale only. So that is the one mistake blunder I would say I had committed in the GP. And in lecture, it was also one of my, it also favored me. Sir gave me the check, and the first topic was related to feminist jurisprudence and child, in women child infanticide. So I had taken up the subject in my LLB only semester 4, feminist jurisprudence. So that had helped me to give some points regarding the lecturate. And GO individual obstacles was very easy, was able to do complete all in time, and same with the GOR. And ma'am, interview is normal like every other SSB only. So I was as honest I could be. That's all, ma'am. That your degree helped you, your studies helped you in your GDs and your other lecturing part as well. Yes. Tell us about your the individual obstacles and the ground task which you did in your SSB. Ma'am, individual obstacles are normal as in army SSBs. So I was able to complete all in 3 minutes. I had done only 10 obstacles, but in 3 minutes time. And in GUR, the normal structures, both six. I think there are 6 obstacles that we have to cross as a group. So our group was very coordinating. There was a person in our group who had stitches in his legs. So I was supporting him all the time. Like I had taken up the duty to take care of him. Even if we come last, me and another guy, our duty was, because we were a bit heavier than that guy. So we were carrying that guy all the time and we were making sure that his stitches do not get hurt again. So that was our, basically we had assigned 2 people, me and another guy. So we were taking care of that guy and we completed the task in the given
scenario and avoiding all the penalties that were told us to by the GTO. So let us start the discussion about your interview, personal interview. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, when I went inside the room, uh, I wished the interviewing officer. He said, "Sit down." Then he asked me the very first question. He asked me that, "What was your written examination center?" So I was taken aback about by that because the written exam had happened 6 months back. So maybe he asked this question because in the Coast Guard, this is the first time the written exam has been conducted. Earlier, it used to be a direct. So I said, "Sir, I know the place Noida, but I do not remember the name of the lab because the exam was conducted in some lab." So he said, "Okay, try to remember it." I said, "Sir, I cannot recall it right now." Then, ma'am, he started asking me about myself. Like he said, like, "I will talk to you about in next half an hour to 40 minutes about yourself, your family." And he started the normal questions about my 10th education, my class 12th education, how my family, about my family background, and other things regarding to my hobbies and my sports. So, ma'am, I told him that I have been born and brought up in Delhi only, and this schooling भी पूरी Delhi से ही हुई है सब कुछ, 10th 12th college. And फिर he asked me about NCC also, कि why did you take up NCC and what was the motivation behind it, and did you hold any ranks or any position of responsibility in NCC. So I told him that in camps we were assigned some, I was assigned some uh, position of responsibility, college senior. But apart from that, I was a cadet only all 3 years. So he asked me, why did you not able to get some rank like junior under officer or something else? So I said, "Sir, there were better candidates or better cadets who were good at drill more than me, and they were more regular than I was. So that is why our ANO assigned them the rank. But I played my role, which I could as a cadet only." So, ma'am, after that, there were basic questions about Indian Coast Guard. What are the ranks of Indian Coast Guard, and what do you know about ship? How do a ship float? So basic, I was able to answer because I had read before coming to the SSB about the Indian Coast Guard, basic things, not in very detail. So I was able to answer the basic questions and not the very detailed question about it. And there were questions regarding my friends, my hobbies, my strengths, and my weaknesses. That, and like one question I remember, he asked me that, "Tell me three of your good friends. Tell me three good things you like about him, and three bad things you do not like about them, or you want to improve in them." So these were the type of questions that was asked to me. I think these are the basic questions which in all previous SSP I have answered about strengths and weaknesses. There was nothing new about it, and some basic GK current questions was there. What is currently happening? PM of United Kingdom at that time, Liz Truss has just resigned. So I had said that there was one SRT regarding thing, which was like, sir said कि since you are doing law and आप कंसिडर करो कि आप देश के PM हो, so and देश के आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और आप मतलब आप व्हाट वुड बी योर स्टेप कि आप इंटरनल सिक्योरिटी को सेफ रखे देश की. तो आई सेड कि सर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारी आर्म फोर्सेस ऑलरेडी काम कर रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि जो बाहर से फंडिंग आती है और जो भी हमारे अर्बन नक्सल है उनकी जो भी ट्रेनिंग होती है, वो उस चीज को कर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे आर एज एडवांस एज आर मिलिट्रीज और पुलिस आर्म फोर्सेज आर. सो बाहर फंडिंग कट करना बहुत जरूरी है. और सर, एक और एस्पेक्ट है जो कि हमारे देश में कम्युनल हेट्रेड और वो चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाइक वी आर गोइंग इनटू द एज ऑफ सिविल वॉर एट दिस मोमेंट. सो ही सेड कि आपने कहाँ नोटिस किया कि ये कम्युनल हेट्रेड है या फिर क्या है? मैंने कहा, सर, एवरीवेयर इट इज डीपली रूटेड. इफ यू ओपन अ इंस्टाग्राम पेज और अ फेसबुक पेज, यू विल सी that there are different propaganda pages from every side, be it leftist, rightist or anything. So he said ki what will you do to curb that? So मैंने कहा कि सर, there is a longer solution for that. Basic education is very necessary, कि लोगों में सेंस होनी चाहिए, लोगों में सेंस बचपन. तो ही सेड इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा, सर, इमीडिएट सोल्यूशन तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमको उसको लॉ एंड ऑर्डर में हाथ में लेना चाहिए. प्लस जैसे हम गोवा का एग्जांपल ले सकते हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है अभी, तो वहां पे कंपैरेटिवली कम राइट्स होते हैं.
तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे देश में, तो उसका शॉर्ट रन टर्म में तो थोड़ा बहुत विरोध होगा, लेकिन आगे जाके it will be a better cause for the unification of the nation. So I think he was satisfied with the answer, and he, after 45 minutes or so, he said, "Okay, thank you," and I left the room. Rest, ma'am, it was the conference day at the last day, and nothing new. Just they asked me about this day and how was my performance, and asked me to rate my performance out of 5. So I rated 333, and he said, "Okay." And ma'am, result was announced. Okay, you are frank, you were honest in your answers, and you did not have any hesitation in being honest, even if it is a political kind of question. So that's great. Yes, ma'am. I'm very clear about Tell that. us something. Yes. No hesitation. Yes. Yes, Tell us something regarding written exam. I missed out. I didn't know that you attempted written examination and then the PSC. So for those who are curious, yes, people do attend AFCAT written, CDS written, but this is the first time maybe perhaps where Coast Guard is also conducting written examination. So please tell us something about it. ma'am. The Coast Guard exam is conducted by CDAC only, which the organization which conducts the AFCAT examination. So the pattern to the CGCAT, the exam is called CGCAT, Coast Guard Common Admission Test. So the pattern is very similar to the AFCAT. The type of question that comes, the total number of questions are 100, and for every right answer we get +4, and for every negative answer, wrong answer, we get -1. So +4, -1 is the marking scheme, and rest there are 4 sections: GK, English, GS, and reasoning. Maths is is of 10th level only, that similar to the AFCAT. Reasoning is also similar to the AFCAT. English is also. As far as GS is concerned, the number of questions are like a bit on the upper hand of the AFCAT. I would say there were some questions of thermodynamics in science, like 11th class science, 1-2 questions, and in maths in AFCAT there is only arithmetic. Here they ask few questions of advanced mathematics as well, like geometry and mensuration, basic questions, but they do ask it. So I would say if a person is preparing for AFCAT, so he will automatically be preparing for the CGCAT as well, and will be able to clear it with very good marks. Passing marks was earlier 200 marks, but due to some reason the cutoff was reduced to 160 marks for the CGCAT. Almost done here. Ma'am? And Sorry, now ma'am. I'll give it to Nehru sir. Okay, ma'am. Now I want Nehru sir to come in. Yeah, Shwetank, congratulations. Thank you, sir. अच्छा ये बताओ भाई, पहले कहीं कोचिंग लिया था? हाँ सर, 2017 में लिया था सर। कहाँ? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़, ऑलिव ग्रीन? नहीं सर, मिनर्वा में लिया था। मिनर्वा सबसे पुरानी? हाँ सर। तो वो उनका क्या माइंडसेट उन्होंने दिया था आपको, ऑलिव वहां से मिनर्वा से क्या माइंडसेट बनाया था आपने? सर वहां पर क्या था सर, एक तो वहां के मेरे को जो लगा कि जैसे मैंने बार एसएसबी दिया था, मेरे को क्या लगा कि दे आर स्टिल आउटडेटेड एट दैट टाइम। अब तो पता नहीं सर, 5 साल हो गए, लेकिन वो 1955 की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो सर 1990 बाद में जब इतना एसएसबी दिया तो सर पता लगा स्क्रीनिंग इन 1998 के बाद आई थी। तो सर अब वो चीज पे फोकस ही नहीं था, तो सर इसलिए पहले 2 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट ही हो गया था। तो उस चीज पे फोकस बहुत कम था, जो कि आई थिंक सबसे पहला फोकस है स्क्रीनिंग इन पे होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का। तो फर्स्ट स्टेप है सर। तो वो तो माइंड में था ही नहीं, माइंड में था जाएंगे रिकमेंड होके आ जाएंगे। तो सर वो चीज एक थी, और दूसरी चीज ये थी कि ऐसा जो उन्होंने कुछ रटवाया तो नहीं या नोट्स वोट्स दिए, बट वो क्या होता है सर, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज डाल देते हैं उस चीज से, कि बार एक चीज को करा के वो हमारे माइंड में चली जाती है, और फिर उसको चेंज करना ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट लूज कर जाती है। एक मैं बहुत घबराता हूं इन लोगों की शिक्षा से, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कि एक ये पॉजिटिव थिंकिंग का बड़ा उन्होंने बवाल बना के रखा है। तो ये आपने इस बवाल को क्या समझा और इसका क्या किया, पॉजिटिव थिंकिंग का? सर एक्चुअली ये तो सर मेरे दिमाग में भी रहता था पहले कि पॉजिटिव बनाना है, लेकिन अब मेरे को जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑब्वियसली जब स्टोरीज वगैरह लिखते हैं तो दिमाग में ही रहता था कि पॉजिटिव बनानी है। तो सर सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग एक स्टोरी ऑलरेडी बना के रखते हैं जिसको हम पिक्चर के अकॉर्डिंग फिट कर देते हैं, और ये सबसे गलत चीज है जो कि
जिसको चेंज करने में सर मेरे को इतना टाइम लग गया कि लाइक हमें स्टोरी से, जैसे आप अभी कैंडिडेट को बता रहे थे कि हमें पिक्चर देख के स्टोरी बनानी है, हमारे पास दिमाग में रिपीटर्स के स्पेशली, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी बार दे चुके होते हैं, हमारे दिमाग में ऑलरेडी 40-50 थीम्स होते हैं, हम उसमें से ना पिक एंड चूज करते हैं कि सर फोटो देखियो हमने उसको फिट कर दिया। तो सर दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू चेंज फॉर अ रिपीटर, कि अपना जो नेचुरल पर्सनैलिटी है उसको फोटो में से देख के ही कंटेक्स्ट जो भी दिया है उससे स्टोरी बनाई जाए। चाहे वो, सर मैंने खुद इस बार 2 से 3 नेगेटिव स्टोरी बनाई है, लाइक अब फोटो में दिख रहा है कोई किसी को चाकू मार रहा है और एक बंदा गिरा हुआ है, तो आई हैड शोन कि भाई उसने मार दिया है, तो मैंने उसको लिखा कि सर वो मर गया है। एसआरटी में भी ऐसा कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पिस्टल रखी है ऑन दी हेड एंड तुमसे बैग डिमांड कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो सर मैंने कह दिया कि मैं बैग दे दूंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ सर ट्रेन में। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स कि जैसे मेरे साथ के दोस्तों ने बनाया कि मैंने उससे गन छीन ली, मैंने उससे लड़ाई कर ली, तो सर वो मेरे को लॉजिकल नहीं लगा बिल्कुल, कि छोड़ो इसको दे देंगे बैग और बाद में रिपोर्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि उसका फेस रिमेम्बर कर सके और बाद में रिपोर्ट कर देंगे आरपीएफ। बस मैंने यही लिखा था अपने सॉल्यूशन में। तो सर ये पॉजिटिव वाला जो चीज है ना, मैंने सीखा है कि अगर फोटो में दिख रही है कोई नेगेटिविटी क्लियरली, लाइक सर अभी लास्ट एएफएसडी में मेरी 3 पिक्चर आई थी, पहली 3 पिक्चरों में ही नेगेटिव चीजें दिख रही थी। अ पर्सन वाज ऑन दी रोड एंड देयर वाज अ हेल लॉट ऑफ ब्लीडिंग, सो आई शोड हिम डेड ओनली। तो जो मेरे को दिखा कि भाई जहाँ डेड है उसको हम पॉजिटिव, हम एंड उसको ऐसा कर सकते हैं कि उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अगर उसका ब्रदर है तो उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वैसा था कि सर पॉल्स में जो पॉजिटिविटी, क्योंकि सर मेरे साथ स्क्रीनिंग में बच्चों ने नेगेटिव मूड भी लिखा था और वो भी स्क्रीनिंग हुए थे, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मूड लिख दिया तो स्क्रीनिंग नहीं है। करेक्ट, गुड। तो ये बताओ फिर वो माइंडसेट लेके आपको नो फ्रिल्स एकेडमी के बारे में कैसे पता चल गया? सर एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही रहा था आपको, यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहा था, तो आपके जो भी ब्लॉग्स होते थे इंस्टाग्राम पे या फिर आपके जो उस पे थे, तो वो मेरे को जो भी आपने पॉइंट्स आप बुलेट्स में लिखते हैं हर चीज, तो मेरे को वो काफी प्रिसाइज लगा और काफी लॉजिकल लगा था, तो आई थॉट कि सर को रीच आउट करते हैं। एंड मेरा एक फ्रेंड भी था सर, आपका स्टूडेंट ही है, वो भी दीपांशु शर्मा ही है, वो भी हाँ एएफएससी में। दीपांशु, वो हाँ वो तो मेरठ वाला ही है। सर मैं भी मेरठ से होम टाउन मेरठ तो। वाला ही हो आप भी? हाँ। हाँ तो सर फिर उससे भी बात हुआ तो ही सेड कि बात कर ले, तो वो बुक पढ़ता था सर, एएफएससी में मिला था, तो मैंने कहा कि ठीक है सर से बात करके देखते हैं। सर तब आपसे बात हुई थी अक्टूबर में पहली बार, तो सर आपने काफी ज्यादा मेरे को मतलब बताया था इंटरेक्शन में कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं अबाउट दैट, तो फिर धीरे धीरे करके उस पर काम करना शुरू किया। यू डिड यू गो थ्रू द कंप्लीट बुक, प्रैक्टिकल गाइड? हाँ सर, मैंने लाइक पहले महीने तो नहीं पढ़ा था, उसके बाद मैंने पूरा पढ़ा और मैं उसको लाइक आरएसएस में लेके जाता था कि भाई एक बार पढ़ लूंगा सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे, चाहे जित सर उसके बाद लाइक मैंने आपसे मिलने के बाद 4 to 5 एसएस भी दिए, मैं उसको हर एसएसबी से स्क्रीनिंग इन से पहले देखता था कि, क्योंकि सर उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्टोरी है तो उससे माइंड, लेकिन ये है कि क्या क्या चीजें मेरे को अवॉइड करनी है टू रिवाइज एवरी टाइम, तो वो मैं अभी भी बैग में रखता हूँ, कॉलेज भी लेके आता तो अपने बैग में रखता हूँ, पतली सी है सर। Very nice, very thankful. So you found certain things useful in that book? हाँ सर, मतलब लाइक इंटरव्यू में मेरे को काफी हेल्प हुई। पहले मैं झूठ बोलता था कि मार्क्स कम है तो बहाने मारता था कि मैंने एनसीसी किया, ये किया, और सर इंटरव्यू कहते थे, जैसे एक इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ कि सर ने कहा कि एनसीसी तो सब करते हैं, तो एनसीसी का मतलब ये थोड़ी है कि आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे, तो सर ब्लैंक। तो अभी भी मेरे से पूछा इंटरव्यू में, तो आई वाज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आई वाज ब्रूटली ऑनेस्ट कि सर मेरी तरफ से लैक ऑफ कमिटमेंट था और मैं डिस्ट्रैक्टेड था एट दैट टाइम, मैं घूमने फिरने में रहता था और मैं बैडमिंटन खेलने चल जाता था क्लास बंक करके। तो फिर उन्होंने उसका रीजन पूछा कि आप बंक करके क्यों जाते थे, कि बैडमिंटन खेलने में। मैंने कहा सर बैडमिंटन खेलने में ज्यादा मजा आता था, और कहते कि आपको टीचर्स का पढ़ाया सर। मैंने कहा सर टीचर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे साइड से थी, तो कॉलेज में मैं रेगुलर नहीं था, इसलिए मेरे मार्क्स कॉलेज में 60% आया, और जो कि मतलब पेपर देने के लिए तो गुड इनफ है, लेकिन वैसे गुड इनफ नहीं। तो सर उसके बाद तो कुछ। अंडरस्टूड। तो आप जब थे हमारे पास आ गए तो आपका ओरिएंटेशन तो सही लाइन पे आ गया, पर आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट अपने में करने में कितना टाइम लगा, और क्या जेन्युइन इम्प्रूवमेंट के बाद ही आपका सिलेक्शन हुआ कि सिलेक्शन भी ऐसे ही हो ही गया? सर मेरे को सर अभी बताओ तो अभी भी पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है, अभी भी वो प्रोग्रेस में ही है सर। मतलब मैं भी, ऐसा तो है नहीं सर कि आज रिकमेंड हो गया तो मैं कल चेंज हो जाऊंगा। इट हैज टेकन अबाउट एन ईयर सर। मतलब पहले 1-2 महीने तो मेरे को समझने में लगा कि क्या क्या इम्प्रूव करना है,
स्टार्टिंग में जोश बहुत आया था, चलो करते हैं करते हैं करते हैं। फिर सर अप्स एंड डाउन्स रहता है कि रोज रेगुलर नहीं हो पाते, पढ़ाई पेपर आ जाते हैं बीच में, सब छूट जाता है। फिर उसको मैनेज किया सर, मतलब आई वुड से सर 6 मंथ्स के बाद मेरे को थोड़ा बहुत चेंज आने में लगा। जब मैं थोड़ा फिजिकली भी फिट हो गया, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, थोड़ी रनिंग वगैरह करनी स्टार्ट की। पहले तो सर बिल्कुल ही रनिंग नहीं करता था, अब कम से कम 5 किलोमीटर तो भाग लेता हूँ 25 मिनट 26 मिनट में। तो सर ठीक ठाक भाग लेता हूँ, पहले तो सर भागता ही नहीं था 5 किलोमीटर, तो उससे भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। प्लस सर मैंने जब से सीडीएस वगैरह सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम किए, काफी सारे सारे क्रैक किए सर। सीजीएल भी क्रैक कर दिया, और सीपीओ का टीयर 1 क्रैक किया था, बट क्योंकि मैं उस टाइम ग्रेजुएशन में था तो मैं नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पाया। एंड सेम विद सीडीएस, पहले 3 सीडीएस नहीं हुए, फिर सीडीएस हुआ, एफकट तो हो ही जाता है। तो सर उससे क्या रहता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम एसएसबी जा रहे हैं, तो हमें रहता है कि यार वी हैव समथिंग टू इन आवर बैकअप ऑल्सो, कि एलएलबी कर रहे हैं तो चलो कुछ नहीं होता, ये नहीं होगा तो कोई नहीं, हम अपना एलएलबी तो कर देंगे। और सर मैंने कोशिश किया है, जो मेरा एलएलबी का भी स्कोर है पिछले 2 बार, पिछली बार से ऑफलाइन हो रहा है, तो मैं उसको मेंटेन रखूँ, उसको थोड़ा हाई साइड पे रखूँ, कि ग्रेजुएशन में जो मिस्टेक हुआ उसको नहीं करूँ। तो वो भी अच्छा रहा इस बार सेमेस्टर का स्कोर। तो सर अब यही है कि थोड़ा टाइम लगता है, मतलब पहले तो रिजल्ट जल्दी जल्दी, जैसे मैंने सर ने मुझसे पूछा कि आप क्या वीकनेस मानते हो, मैंने कहा सर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, कि मेरे को ना रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। कि उन्होंने पूछा कि कैसा एग्जाम्पल दो आप, तो सर मैंने कहा कि जैसे मैं रनिंग करने जाता हूँ, मेरा दोस्त एथलीट है, मैं एथलीट नहीं, मैं उसको खुद से कंपेयर करता हूँ कि भाई तू इतनी तेज भाग रहा है तो मेरे को भी जल्दी से भाग। तो इम्पेशेंस वाला फैक्टर है जो कि मेरे अंदर है। तो सर उसको ओवर द टाइम लगा, 1 साल लग गया सर, और अभी भी आई मीन दी लर्निंग स्टेज हूँ कि भाई और इम्प्रूव करना है। जो भी चीजें हैं जीएस में थोड़ा और इम्प्रूव करना है, जियो पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, इकोनॉमिकल इश्यूज हो गए, तो उसमें थोड़ा और बेटर रहेगा। तो आगे वाले एसएसबी भी जो रहेंगे उनमें बेटर परफॉर्मेंस देता हूँ। How many times did you go through the complete process earlier? Sir, complete process, like after screening, I was screened six times. This was my seventh, so I was screened out 6 times, sir. ओके ओके। तो जो था अभी डेस्परेशन अभी भी था, या डेस्परेशन का मामला हट गया था? सर मैं तो सर बहुत चिल था इस बार तो, कि ओके मतलब जैसे कोई भी टास्क हुआ, बच्चे रूम में आके डिस्कस करते हैं, मैंने डिस्कस डिस्कस कुछ नहीं किया। जब खेलने का टाइम था खेलने चला गया, जब सोने का टाइम था मैं सोने चला गया। ठीक है सर, क्योंकि पहले रहता था कि यार क्या होगा क्या, मतलब हम उस इतने अटेम्प्ट के बाद ही समझ में आता है इन सब डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। जिस असेसर का काम है वो असेसर असेस कर लेंगे, हमें बस अपना करके आ जाना है। तो सर यही चीज थी ना, हमने ग्रुप में बच्चे बैठते हैं, ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि यार जीडी में ऐसे बात करेंगे ऐसे बात करेंगे। सर कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल अपना अपना टास्क किया, रूम पे आए, बात की, खेलने गए, रात को खाना खाया और सो गए। तो सर ऐसा ही था। और पहले रहता था कि सर बहुत डेस्परेट है कि यार रिकमेंड होना है रिकमेंड होना है, तो उससे मेरे को लगता है प्रेशर और बन जाता है कि हम सोचते रहते हैं ना रिकमेंड होना है, तो हम जो टास्क एट हैंड होता है उसको नहीं कर पाते। तो वो थोड़ा कम हो गया सर, डेस्परेशन वगैरह रिकमेंड होने का, तो वो फायदा तो हुआ ही है। तो श्वेतांक ये बताओ यार, देखिए मेन आपका क्रक्स ये होगा जो आप बेनिफिट दे पाएंगे बाकी और स्टूडेंट्स को, ये बताइए कि जब से आपने ज्वाइन अप किया नो फ्रिल्स एकेडमी, उसके बाद से आपकी जर्नी सेल्फ इंप्रूवमेंट की कैसे रही? एसएसबी को मारो झाड़ू, और वो बताइए क्रक्स के आपने एटीट्यूड में और अपने में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाए, बिकॉज दोज आर द मेजर थिंग्स व्हिच हैव गॉट यू रिकमेंडेड। ये थोड़ा समझाओ क्या क्या किया, कैसे रहे, चला सर आएगा। सबसे पहला तो स्टार्ट ही मैंने अपने रनिंग से किया था, ठीक है सर, क्योंकि मैंने आपसे जब इंटरेक्शन किया था तो आपने कही थी कि भाई तू 5 किलोमीटर कितने टाइम में भागता है, मैंने कहा सर मैं कभी भागा ही नहीं 5 किलोमीटर। तो फिर सर रनिंग करना स्टार्ट किया, फिर मैंने फर्स्ट 5 किलोमीटर भागा 33 ऑड मिनट्स में भागा था। फिर धीरे धीरे उसमें रेगुलर रहा, और अपने मैं अकेला नहीं था सर, मेरे साथ जो और भी लोग हैं डिफेंसिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग साथ ही रनिंग करते थे। उसके बाद सर मेरा आउटलुक थोड़ा लॉजिकल हो गया हर चीज को लेके, कि अगर कोई मैंने कोई प्रैक्टिस तो की नहीं सर साइक वाइक कुछ भी, क्योंकि मैं वो कभी करता ही नहीं था। तो मैंने जैसे कोई भी चीज है, अगर मैं उसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है, तो सर वो चीज काफी हेल्प करी है आगे जाके। और टास्क एट हैंड जो भी है उस पर फोकस करना है, रिजल्ट के बारे में सोचा है लेकिन इतना भी नहीं सोचना कि वो पॉइंट हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर कर दे। तो सर ये था, और इसको सर करने में बहुत टाइम लग गया।
छोटी छोटी चीजों को चेंज करने के लिए। जैसे मेरा कंफर्ट जोन वाला पॉइंट आपने मेरे को बताया था, मैं कंफर्ट जोन में रहता हूँ और उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो वो उस चीज को मैंने चेंज करने की कोशिश करी है, अभी भी कर रहा हूँ कि कोई भी चीज जो मेरे को, जैसे मैं अगर मैंने छोड़ दिया एकदम से कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना, तो आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी से वापस आ जाऊँ ट्रैक, कि वापस कंफर्ट जोन में नहीं जाना। और पढ़ाई को लेके सर कि मैंने अपना एकेडमिक थोड़ा परफॉर्म करा, उससे फिर फायदा ही होता है कि हमारे पास अच्छे पॉइंट रहते हैं बोलने के लिए, जीडी में भी हो तो कुछ भी होता है, तो पढ़ाई का थोड़ा इंपॉर्टेंस किया, रिटर्न एग्जामिनेशन में मैंने मेहनत करी। और ऑब्वियसली सर सपोर्ट भी रहता है सर, बाकी सबका फ्रेंड्स का सपोर्ट काफी अच्छा रहता है, तो और जब आप फैमिली भी देखती है कि लड़का मेहनत कर रहा है तो दे ऑल्सो सपोर्ट, तो इस चीज के लिए भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। बट सर इट हैज टेकन टाइम, ऐसा नहीं है कि सर मैं आपसे इंटरेक्शन किया और मैं 1 महीने में ठीक हो गया, उसमें सर समय लगा है बहुत ज्यादा। मैं मतलब इम्पेशंस वाला फैक्टर धीरे धीरे जा रहा है कि कोई नहीं, ये मतलब एक वो एक मतलब लाइक सर महेंद्र सिंह धोनी मेरा आइडल टाइप है, तो ही यूज्ड टू से कि ट्रस्ट द प्रोसेस, तो वो जो प्रोसेस है ना सर वो बहुत टाइम टेकिंग है, स्पेशली मेरे जैसे कैंडिडेट्स के लिए, कि भाई जो कि थोड़े वैसे हैं सर कि थोड़ा कंफर्ट जोन वाले टाइप वाले हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट हो गया सर। अभी और भी इम्प्रूव करने की वो है कोशिश, तो यही है सर। वेरी गुड। ये बताइए, आपने टाइम मैनेजमेंट वाला मैट्रिक्स जो हमने समझाया हुआ है वो अप्लाई किया अपनी लाइफ में? हाँ सर, मैंने लाइक पहले तो सर एक अनरियलिस्टिक सा टाइम टेबल बना दिया, ठीक है, जो मेरे से फॉलो नहीं हुआ, 1 हफ्ते बाद खत्म। तो सर फिर मैंने स्लॉट्स सेट करे कि मेरे को ये फिक्स नहीं करना है, मेरे को टारगेट लेके चलना है दिन का, कि भाई आज अगर मेरे को 5 किलोमीटर भागना है, 2 किलोमीटर भागना है, तो मैं उसका टाइम फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि सर एक बार टाइम फिक्स मैंने देखा मेरे में कमी क्या है, जैसे मैंने सुबह 6 बजे रनिंग का टाइम फिक्स किया और मैं उठा नहीं, तो सर मैं बोलूंगा कि कल भागूंगा, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप। तो मैंने डेली का कर लिया कि आज मेरे को भागना है, वो किसी भी टाइम भाग, तो सर जैसे ही मैं अगर लेट उठा तो मैं शाम को भागने चला गया, तो वो ऐसे मैंने टाइम मैनेज किया सर। और ऐसे ही पढ़ने का किया कि भाई मेरे को आज 6 घंटे पढ़ना है, तो मैं किसी भी टाइम पढ़ूंगा, उस 6 घंटे दिन में निकालूंगा उसके लिए, जैसे 2 घंटे मैथ्स पढ़ ली, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ लिए, 2-3 घंटा रीजनिंग पढ़ ली, तो ऐसे करके मैंने उसको मैनेज किया। मैंने फिक्स टाइम नहीं दिया था, क्योंकि ये सर सबका अपना मेथड होता है, मेरे को ये लगा कि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं ना टाइम अलॉट कर रहा हूँ और वो टाइम जैसे ही निकल जा रहा है तो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक दिन का लेके चलते हैं। तो सर ऐसे ही मैंने दिन के साथ वीक का भी सोचा कि एक वीक में हमें जैसे कोई भी टॉपिक है मैथ्स का या फिर कुछ भी है, तो उसको खत्म करना है, तो उसको खत्म करना है, चाहे अब मेरे को 3 घंटा बैठना पड़े या 4 घंटा बैठना पड़े। सर ऐसे किया था। आपके पेरेंट्स से क्या फीडबैक मिला आपके बारे में? उन्हें लगा कि कुछ चेंजेस आए हैं लड़के में, या वो वैसा का वैसा ही है? सर पापा को तो लगा, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो मम्मी तो कभी मेरी तारीफ करती नहीं है सर, क्योंकि उनको लगता है कि तारीफ करेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बट हाँ उनको लगता है कि ऑब्वियसली सर की इतने टाइम से लग रहा है, तो मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है काफी टाइम से, तो वो लाइक देवर से कि तू एट दी बिल्कुल बॉर्डर पे है, कि अभी सेलेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम श्योर हो जाएगा। कि सर जब क्या होता है कि उनको दिखता है कि कोई काम कर रहा है, तो दे नो कि रिजल्ट इज नॉट सो फार। और पापा तो कहते थे कि जैसे आपका अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो किसी और फील्ड में हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। सो यही था सर पेरेंट्स का। और So they realized that you have become more sincere and focused. हाँ सर, सर सिंसियर फोकस तो सर हो गया, सिंसियरिटी तो सर आएगी, मतलब सर थोड़ा सा तो Okay, fine. फोकस बढ़ गया, लेकिन सर डेफिनेटली। Okay, fine. Shwetank, you have done your parents proud, your friends, No Frills Academy proud, and me proud. It has been very nice talking to you. I have no more questions. Okay, then all of you take care. Bye-bye. God bless.